اور اب خبر تفصیل سے بانڈپورہ کے چھٹے بانڈے علاقے میں آج NIA نے کارروائیاں انجام دی۔ دہشت گردانہ امور کی جانچ کرنے والی قومی ایجنسی نے جموں کشمیر پولیس کے ہمراہ یہاں مزمل بٹ اور وقار لون نامی 2 افراد کے گھروں پر چھاپے مارے۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی کے دوران مزمل بٹ اور ان کے والد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وقار لون ملیٹنسی سے جڑے ایک معاملے میں پہلے ہی سے گرفتار ہے۔ سری نگر میں نکالے جانے والے تاریخی جلوس اعزاء پر لگی پابندی کو 30 سال بعد ہٹا دیا گیا، لیکن یہ پابندی ہٹنے کے بعد سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولانا عمران رضا انصاری نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ جلوس اعزاء آبی گزر سے علی پار جڑیبل تک نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن نے بھی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جن راستوں سے یہ تاریخی جلوس برآمد ہوتا تھا ان تمام راستوں پر لگی پابندی ہٹنی چاہیے۔ انہوں نے جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ اور میلاد جلوس پر لگی پابندی بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ انہوں نے یہ ایکنالج کیا کہ یہ بین تھا، اور انہوں نے یہ ایکنالج کیا کہ ہم اس بین کو ہٹا رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس چیز کا پوری طرح سے ویلکم کیا، کیونکہ ہم 31 سال سے ہم محروم ہیں کہ ہم ایک مرکزی جلوس نکل پائے۔ اور اس میں انہوں نے جو آبی گزر سے لال چوک کی جو بات کی تھی، ہم نے اسی دن ان کو کہا کہ یہ لال چوک سے یہ آبی گزر سے پورا زریبل تک جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کلریکل ایرر ہو یا باقی چیزیں۔ جو باقی ہمارے دوست و احباب ہیں، اقارب ہیں، نہ صرف شیعہ برادری میں، ہمارے اہل سنت برادری میں بھی، ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر پابندی ہٹائی گئی ہے اچھی بات ہے، مگر اس کو کٹوتی کیوں کی گئی ہے؟ جس روٹ سے یہ چلتا ہے، حب کدل سے، گاؤں کدل سے، صفا کدل سے، مختلف روٹوں سے علی پارک میں یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جناب میرواز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق صاحب جو رول اس میں رہا ہے وہ اپنا رول نبھائے۔ مفتی اعظم صاحب ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں، تو اس جلوس کو امن امان برقرار رکھنے میں ہم سب مل کر کام کریں گے۔ جامع مسجد کے محراب ممبر پر بھی پابندی ہٹنی چاہیے، میلاد کے جلوس پر پابندی ہٹنی چاہیے۔ جموں کشمیر میں 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد امن و امان کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پتھر بازی کے واقعات میں نمایاں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران سیکیورٹی کے تعلق سے مزید کیا تبدیلی آئی ہے؟ پیش ہے منوج کول کی یہ رپورٹ۔ دفعہ 370 کی منسوخی سے پہلے وادی کشمیر میں پتھراؤ کے واقعات معمول بن گئے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد ہو یا انکاؤنٹر کے مقامات کے قریب، اکثر گمراہ نوجوانوں کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہری زخمی ہوتے تھے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے ان ملک دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی، جس کے نتیجے میں پچھلے 2 سالوں کے دوران ان واقعات میں کافی کمی آئی۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں جنوری سے جولائی کے دوران پتھر بازی کے 618 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ 2020 کے پہلے 7 ماہ میں یہ تعداد کم ہو کر 222 ہو گئی۔ وزارت داخلہ کے مطابق جنوری سے جولائی 2021 تک پتھراؤ کے صرف 64 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ جموں کشمیر کے سابق ڈی جی پی ایس پی وید کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کو ہوا دی ان کے خلاف کارروائی سے اچھے نتائج سامنے آئے۔ کافی وائلنس رہتی تھی، جہاں جاؤ پتھراؤ ہو رہا ہے، گاڑیاں ٹوٹ رہی، ٹورسٹ کو حملہ ہو رہا ہے اور فورسز پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو ایک بڑا ٹینس سا ماحول رہتا تھا۔ 370 کے ایبوریگیشن کے بعد یہ فیکٹ ہے، کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ سٹون پیلٹنگ آلموسٹ نل ہو گئی ہے، تو اٹ از
वेरी पॉजिटिव थिंग। हुर्रियत और इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया था, बंद काल दे रहे हैं, लड़कों को टेररिज्म में झोंक रहे हैं, तो वो चीज़ें NIA रेड्स के बाद रुकी हैं। हुर्रियत ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हुई है, उससे जो ओवरऑल इकोसिस्टम था टेररिज्म क्रिएट करने का, उसमें फ़र्क पड़ा। दफा 370 की मनसूखी के बाद पत्थरबाजी के वाकयात में कमी के अलावा उन लोगों की जहनियत में मुस्बत तब्दीली आई है जो अलहदगी पसंद नजरियात के लिए नर्म गोशा रखते थे। दिफाई उमूर के माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि उनमें से बहुत से अलहदगी पसंद रहनुमा जो पहले की हुकूमतों की सिक्योरिटी का मजा ले रहे थे, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत सख्त कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी बच्चा पत्थरबाजी में था इन्वॉल्व, उसके जिसके केस बने थे, उनकी जो है उनको पहली बात गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट जॉब देनी है किसी को, उसकी पहले CID वेरिफिकेशन होगी। और तीसरा, जो ये थे उनको, ये पिछली गवर्नमेंट ने उन्हें बैकडोर एंट्री करा के उनको गवर्नमेंट की नौकरियां दी हुई थी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पैसे लेते थे टैक्स पेयर के मनी से और बात करते थे एंटी नेशनल, उनको सबको निकालना शुरू कर दिया। ये ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई है अब गवर्नमेंट ने, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा एक कामयाब कदम है आर्टिकल 370 का जाने का। जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वेद ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मिलिटेंटों को हलाक करके अपना काम कर रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता OGW के झूठे प्रोपागंडे से मोहतात रहने की जरूरत है, जो नौजवानों को मिलिटेंसी की जानिब रागिब करने के लिए दफा 370 की मनसूखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये सब का कंसर्न होना चाहिए कि लड़के रेडिकलाइज ना हो, ये हमारे लड़के हैं, ये सब में भाव आना चाहिए। बाकी सारी गवर्नमेंट के विंग्स ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि सबको, मैं समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी, सबको मिलकर इंश्योर करना चाहिए कि ये बच्चे टेररिज्म में ना जाएं, ये रेडिकलाइज ना हो। ये अल्टीमेटली हमारे समाज को ख़राब करते हैं, हमारी सोसाइटी को तबाह करते हैं, और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होता है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर हुकूमत इसी जज्बे के साथ अपनी कोशिशें जारी रखे तो कश्मीर में यकीनन बेहतर बदलाव आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। इस बीच 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने बयान जारी किया है। गुपकार अलायंस ने कहा कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान के आईन पर बेनज़ीर हमला किया गया। दफा 370 को कलादम करार दिया गया, जिससे यूनियन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर के रिश्ते को नुकसान पहुंचा। मरकजी हुकूमत ने तमाम हदें पार करके जम्मू कश्मीर के दस्तूर को ढा दिया है। आवाम की रजामंदी की परवाह किए बिना तारीखी रियासत के हिस्से कर दिए गए। मरकज़ ने जम्मू कश्मीर असम्बली के 3 मार्च 2014 के रेजोल्यूशन को नज़रअंदाज कर दिया। उस करारदाद में जम्मू कश्मीर की सेकुलर हैसियत और सालमियत को बरकरार रखने पर जोर दिया गया था। दफा 35A की मनसूखी से मकामी लोगों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं। गुपकार अलायंस के मुताबिक बीजेपी का नया कश्मीर का नारा धोखे के मुतरादिफ है और एक भद्दे मजाक के सिवा कुछ नहीं है। गुपकार अलायंस के मुताबिक तवक्को के बरक्स हुकूमत अपने गलत फैसलों का इदराक नहीं करना चाहती है। दफा 370 और 35A के खात्मे को लेकर अब भी मुख्तलिफ हलकों में इख्तिलाफ राय है। वहीं ये बात आया है कि 370 की मनसूखी के बाद पंचायत राज मजीद मुस्तहकम है। पंचायत राज इदारों के खुद मुख्तार होने के बाद अब सही मानों में गांव देहात की तस्वीर बदलने लगी है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू की ये खास पेशकश। दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के पंचायत राज के लिए एक नया सूरज उस वक्त तुलू हुआ जब यहाँ के 33,592 पंच और 4,290 सरपंच हलकों के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिनमें 74% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में पंचायतों को बाख्तियार बनाना फिर भी एक मसला था, जिसकी अहमियत के पेश नज़र सरकार ने अगस्त 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A के खात्मे के साथ ही पंचायतों को बाख्तियार बनाने की राहें हमवार की। न सिर्फ पंचायत राज एक्ट की 73वीं तरमीम के निफाज को तस्लीम करने की बात चली, बल्कि दीगर अहम तरामीम पास करके जम्मू कश्मीर में पंचायतों को पूरी तरह से बाख्तियार बना दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के गांव देहात में तामीर और तरक्की ने दस्तक दी और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज हुआ।
जितने भी गाँव में, जितने भी JNK में जितने भी पंचायत है, जितने भी हलके हैं, आज हर एक हलके में ईमानदारी से काम हो रहा है। 70 साल से यहाँ कुछ काम नहीं हुए, जब से 370 यहाँ ख़त्म हुआ तब से बहुत सारे फ़ायदे JNK को मिला। बेरोज़गार नौजवान आज काम कर रहे हैं अपने अपने हलके में, अपने अपने गाँव में, लोग खुश है, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। जो सेंटर से पैसे आ रहे हैं वो डायरेक्ट ही सरपंच पंच के अकाउंट में आते हैं, और वो जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके हाथ में पैसे आते हैं, वो काम करते हैं, चाहे ड्रेनें हो या सड़कें हो या और भी कोई काम हो, उससे वो काम कर सकते हैं। आम आदमी बहुत खुश है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 के खात्मे के बाद पंचायती राज को तक़वियत देना यकीनी तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सरकार ने पंचायतों को बराह रास्त तौर पर 21 इंतजामी उमूर में मदाखलत का अहल बना दिया, जबकि पंचायतों को बराह रास्त तरीक़ेकार से 1500 करोड़ रुपए भी फराहम किए गए, ताकि ये रकम पंचायती हलकों में सिर्फ तामीर और तरक्की के लिए सर्फ की जा सके। नए सिर पंचायत बन बस अत मजन काम कर हायक त हायक त योतान चलान तोतान दपान नसा गाँव फायदे वात गई कायम मान लगन खखर मैं गई सूरत गई वन मतलब गई कम कह ये बन पे 10 वही पोज फोन गई खर्च मान पंचायत में नल खर्च नल कहीं। पंचायतों के जरिए 3 टायर निजाम के तहत अब इन इलाकों का नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है, जो अरसे दराज से पसमानदगी और मुफलिसी की दास्तान बयान करते थे, और जहां पर पक्की सड़कें और गली कूचे गोया एक ख्वाब की मानिंद थे। वाटरशेड मैनेजमेंट और MG नरेगा जैसी स्कीमों का कंट्रोल बराह रास्त तौर पर पंचायतों के हाथ में आने के बाद न सिर्फ तरक्की की राह हमवार हुई, बल्कि आम लोगों के लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा हुए, जबकि बैक टू विलेज जैसे प्रोग्रामों के खातिर ख्वाह नतायज भी बरामद हुए। आजकल डायरेक्ट फंड्स आते हैं पंचायत के पास, और पंचायत जो काम विलेज लेवल पे जो भी काम होता है पंचायत वो काम खुद कर सकता है। लेकिन इससे पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो उस टाइम क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर लगाना होता है किसी विलेज में तो MLA के पास 6-6 महीने 5-5 महीने जूते और चप्पल गिर जाते थे, फिर 6 महीने के बाद फिर भी निराशा होके हम घर पहुंच जाते थे वापस। ग्राउंड लेवल पे जो काम होना था बहुत ढंग से हो रहा है, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है वो हम बहुत अच्छे तरीके से खर्च कर रहे हैं। प्ले फील्ड बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं, जो पार्क्स बना रहे हैं हम। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें कोऑपरेट कर रही है, बहुत पैसा दे रही है गाँव की तरक्की के लिए, तो हम गाँव की तरक्की बहुत अच्छी से कर रहे हैं। लोअर पंचायती इंतखाबात के बाद जहां आम लोगों के हाथ में ताकत आई, वहीं सरकार ने 2019 और 2020 में BBDC और DDC इंतखाबात मुनक्किद करके एक और संगे मील तय किया, जिसके बाद अब गांव के लोग ही अपने गांव के हक में फैसला लेने के मजाज बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राहुल गांधी 9 अगस्त को श्रीनगर का दौरा करेंगे। रियासती सदर गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी वहां पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से भी मिल सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो 8 अगस्त को जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन का इरादा रखते हैं, ताहम इस पर अभी मुहर नहीं लगाई गई। जम्मू में भी पार्टी रहनुमाओं और दीगर लोगों से मिलने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर में खीर भवानी और हजरत बल के दौरे के मंसूबे पर भी बनाए जा रहे हैं, ताहम ये भी अभी फाइनल होना बाकी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियां चलाने वालों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। शाहराह की तजदीद और मरम्मत के लिए मखसूस किए जाने वाले दिनों में मकामी लोगों और मरीजों को मुश्किलों का सामना रहता है। गुज़श्ता साल से लगातार हफ्ते में एक दिन शाहराह बंद रखने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तामीराती कंपनियों की जानिब से तजदीद और मरम्मत के नाम पर हो रहे कामों से लोग खफा हैं। मुलाजिमीन, आम मुसाफिरों और ख़ासकर मरीजों को कई घंटों तक रोक दिया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुतल्लिक़ा हुकाम को कई बार दरपेश परेशानियों से आगाह कर दिया गया, लेकिन पाबंदियों का सिलसिला नहीं तोड़ा गया। VIP मूवमेंट के लिए शाहराह को हर वक्त खुला रखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन फ़वक्तन लोगों के
मसले उजागर करते हैं। तो ये जो जिम्मेवारी है ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, क्योंकि इनको पता है ये नेशनल हाईवे है, रामबन बनहाल का जो एरिया है इसको तो पूरा ही इन्होंने बर्बाद करके रखा है। अगर यहाँ पे कोई बीमार है या कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस बेचारे को तो रास्ते में ही जान चले जाएगी। एम्बुलेंस यहाँ पे अभी आपके सामने आ गई तो वो भी रुकी हुई है, उसमें पेशेंट बैठा हुआ है। परेशान है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे से यहाँ रुके हैं, कोई इसका कोई गौर ही नहीं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।